Hello everyone, I am Shivanshli Singh. Welcome to Management E-Learning. In this lecture, we will see the pricing strategy, which is the part of marketing management. Under pricing strategy, हम लोग देखेंगे what is pricing, factor affecting the price decision, pricing strategy definition, its type, price skimming strategy with example, penetration pricing strategy with example, psychological pricing strategy with example, discriminating pricing strategy with example, discount and allowance pricing strategy with example, geographic pricing strategy with example, and product mix pricing strategy, its types with example. Okay, so we will see one by one. What is price? Price is the amount of money charged for a product or service, or the sum of value that consumer exchange for benefit of having or using the product or service. Okay, so प्राइस क्या है? जो मार्केटर, जो ऑर्गेनाइजेशन हमसे मनी चार्ज करता है प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, दैट इज द प्राइस. ओके, सो अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, और इन प्रोफेशनल वे वी कैन डिफाइन sum of values, money having some value, so that means sum of values that consumer exchange for benefit of having or using the product or service. प्रोडक्ट और सर्विस के बेनिफिट के एक्सचेंज में जो कंज्यूमर मार्केटर को पे करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस. ओके, सो अमाउंट ऑफ मनी विच चार्ज फॉर प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस. What factor affecting the pricing decision? Internal factor. Under internal factor, company marketing objective. बहुत सारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक मार्केट शेयर इंक्रीज करना, ब्रांड इमेज बनाना, क्वालिटी इम्प्रूव, क्वालिटी दैट मीन्स ब्रांड इमेज ही क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया. बहुत सारा है, कॉस्ट लीडरशिप को लेके आना. तो हमारा फिर मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी है, जो हमारा 4P ऑफ मार्केटिंग है, दैट इज ऑल्सो इफेक्ट दी प्राइसिंग डिसीजन. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश को बनाने में जो भी कॉस्ट लगता है, दैट इज ऑल्सो कंबाइंड विद द प्राइस, फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. So these are the internal factor of affecting the pricing. Okay, external factor affecting the pricing decision, that is the market and demand, price demand relationship. External factor include the nature of market and demand, and competition and other environmental element like the government policy, that just pestle, political, legal environment, environmental environment, social environment. So this all factor which are affecting the pricing decision. इंटरनल में हमारा क्या था? इंटरनल में हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव था, मार्केटिंग मिक्स था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल में हमारा मार्केट एंड डिमांड है, रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप है, हम नेचर ऑफ मार्केट है, कंपटीशन लेवल है, एंड अदर इन्वायरमेंटल एलिमेंट लाइक गवर्नमेंट डिमांड, गवर्नमेंट कंट्रोल, इन्वायरमेंटल इशू, सोशल, लीगल. सो दिस आर द एलिमेंट विच कम अंडर द एक्सटर्नल फैक्टर. ओके, सो व्हाट इज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ए वे ऑफ फाइंडिंग अ कॉम्पिटिटिव प्राइस of product or service. Pricing strategy is the way of finding the competitive price, okay, of product and service. This strategy is combined with other marketing pricing strategy that are the 4P of strategy, that is 4P of marketing: product, price, place and promotion. And other factor, that is external internal factor, that is economic pattern, competition, market demand. These are the external factor. And finally the product characteristic. This all combinedly affect the pricing strategy. Okay,
So what the effect, what factors are affecting the pricing strategy? That is the 4P of marketing, that is internal and external factor, economic, competition, market and product characteristic. This all combinedly affect the marketing pricing strategy. तो हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? एक वे ऑफ फाइंडिंग द कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस. ओके, pricing strategy is a model or method used to establish the best price. Yes, it is a model or method which is used to establish the best price for a product or service. It helps to choose the price to maximize the profit. हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसका एक गोल होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो इन दिस मॉडल, जो हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मॉडल है, in this model marketer choose the best pricing for product or service. Pricing strategy takes into the account segment, ability to pay, market condition, competitor action, trade margin, input cost amongst other. जब हम लोग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, प्राइसिंग जब प्लान करते हैं तो हमें क्या क्या देखना होता है? हमारा सेगमेंट कैसा है, उनकी एबिलिटी क्या है पे करने की, मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंपटीशन क्या है, या आपका इकोनॉमिक पैटर्न क्या है, कॉम्पिटिटर क्या का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेड मार्जिन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. ये सब हमें देखना होता है बिफोर मेकिंग द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है. इन शॉर्ट, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ए वे ऑफ फाइंडिंग अ कॉम्पिटिटिव प्राइस of a product or a service. Okay, it is focused on generating and increasing the revenue for an organization. So pricing strategy क्या देता है? एक बेस्ट मॉडल देता है जिसमें हम अपना बेस्ट प्राइस को प्रोडक्ट और सर्विस के लिए स्टैब्लिश करते हैं. फिर we can also say a way of finding a competitive price for a product or service, जिसका गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज द रेवेन्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज कॉल्ड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. डेफिनेशन क्लियर है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस के लिए, जिसमें हमें हमारा जो गोल होता है वो बेस्ट प्राइसिंग मॉडल को चूज करना होता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके और हमारा जो प्राइस हो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस हो. दैट इज कॉल्ड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. तो इसके लिए बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा मेथड है जो हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्राइसिंग. दैट इज स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग, डिस्काउंट एंड अलाउंस, ज्योग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, कैसे हम ये सारे स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस के लिए, प्राइस मॉडल के लिए. यस, तो वी विल सी. स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्पिटिशन में बहुत ये क्वेश्चन पूछता है, 100% ये पूछता है. सो प्लीज अच्छे से इसको पढ़ के जाना है. स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, जब भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका प्राइस हम लोग इनिशियल में हाईएस्ट रखते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम उसका प्राइस हम लोग लो करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है. प्राइस स्कीमिंग इज अ प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, okay, by which the firm charge the highest initial price that consumer will pay and then gradually lower the price to attract the price sensitive customer. स्टार्टिंग में हमारा जो प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो वो हाईएस्ट इनिशियल प्राइस पे लॉन्च होता है, जो उनके लिए होता है, उनके लिए उनको वो टारगेट करते हैं जो वो उनको पे कर सकते हैं, जो जिनके लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है, या न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट वो सबसे पहले यूज़ करना चाहते हैं. तो उन कस्टमर के लिए ये प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी है. फिर आफ्टर सम टाइम जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनके लिए वो प्राइस, जब मार्केट में उनका डिमांड थोड़ा लो हो जाता है तो प्राइस को लो करके वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, प्राइसिंग स्कीमिंग हेल्प
a high quality image and perception of the product. प्राइसिंग स्कीमिंग क्या करता है, एक बहुत हाई, क्योंकि ये स्टेटस, आप हाई प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो स्टार्टिंग में, जब लॉन्च होता है तो मार्केट में आता है, तो दैट मीन्स कि वो उनका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा अच्छा इमेज मार्केट में फॉर्म है, तभी वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए लोग पहले से ही नंबर लगा के रखते हैं. ओके, तो ये हाई क्वालिटी इमेज रहता है. प्राइस स्कीमिंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद लग्जरी आइटम. ऑब्वियसली ये लग्जरी आइटम से एसोसिएट है. इट हेल्प द फर्म क्विकली रिकवर इट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड profitability. It generate the high profit margin for company, commonly seen with new innovative product. Price is set high initially to gain the customer who will to pay and almost any price to get their hand on their latest gadget. स्पेशली फ़ोन या टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, फ़ोन या बाइक, ये सब पे भी होता है. सबसे पहले अगर मार्केट में जो लॉन्च होता है उसके लिए वो उनको लेने के लिए वो कोई भी मतलब अमाउंट उनके लिए मैटर ही नहीं करता है. वो कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हैं, बट उनको वो टेक्नोलॉजी जो भी है उनको वो पहले चाहिए होता है. तो ये वैसे कस्टमर के लिए है जिन जो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं, जिनके लिए क्वालिटी मैटर करता है, इमेज, ब्रांड इमेज मैटर करता है. ओके, they work well for the product that create the excitement amongst an early adopter. Best used in introduction or early growth stage of product life cycle. Okay, advantage क्या है प्राइस स्कीमिंग का? It help to build a high quality image and perception of product. ये हेल्प करता है ब्रांड इमेज, क्वालिटी इमेज को फॉर्म करने में. इट हेल्प क्विकली रिकवर इट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा जो लॉन्चिंग प्राइस है वो हाई रहता है प्रोडक्ट का, तो इट हेल्प टू क्विकली शॉर्ट टाइम में हमारा जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, वो हम लोग रिकवर कर लेते हैं. इट हेल्प टू जनरेट दी हाई प्रॉफिट मार्जिन. शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग हाई जनरेट कर लेते हैं. सो दिस आर दी एडवांटेज ऑफ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. डिसएडवांटेज क्या है? कंज्यूमर लॉयल्टी. अगर आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो बहुत ही हाई अमाउंट में, और आफ्टर फ्यू मंथ आप उस प्रोडक्ट का मनी आप कम कर रहे हो, तो जो हाई अमाउंट में जो लिया है प्रोडक्ट, वो समटाइम वो चीटेड फील करता है. वो समटाइम सोचता है कि रुक ही जाते, कुछ दिन के बाद ही ले लेते तो हमें इतना लॉस नहीं होता. तो हमारा क्या होता है इसमें, कस्टमर लॉयल्टी लॉस हो जाता है. सो इफ अ प्रोडक्ट दैट कॉस्ट $1,000 at the launch time and has a follow-on price of $200 in a couple of months, innovator and early adopter may feel ripped off. Okay, and therefore if the firm has the history of price skimming, consumer may wait a couple of months before the purchasing the product. Then second disadvantage is the limitation of sell volume. क्योंकि प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग ब्रॉड वाइडर में या सारे सेगमेंट को लेके नहीं चल सकते हैं. लिमिटेड सेगमेंट जो कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए, उनके लिए है ये. तो सेल वॉल्यूम में लिमिटेशन हो जाता है. ठीक है, प्राइसिंग स्कीमिंग इज नॉट वाइबल लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. यस, ये लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए है जिसमें आपका इनोवेटिव हो, टेक्नोलॉजी यूज़ हो. तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो आपका हर एक 6 मंथ 7 मंथ या 1 ईयर में चेंज होता है. तो ये लॉन्ग टर्म्स के लिए ये स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ प्राइसिंग स्कीमिंग एंड दीज आर दी डिसएडवांटेज. अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे. दीज आर द एग्जाम्पल. आपका एग्जाम्पल इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूजुअली ये प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, लग्जरी फैशन फॉर्म प्रोडक्ट, दे आर यूजिंग द प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. ओके, सो प्राइसिंग स्कीमिंग में क्या हम लोग देखते हैं,
हमारा प्राइस हाई होता है लॉन्च टाइम में, फिर ग्रेजुअली इसको हम लोग लो करते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली ये इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए होता है, फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन, लग्जरी फैशन आइटम के लिए होता है, फर्म के लिए होता है। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। अनदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। Penetration pricing strategy is a marketing strategy used by business to attract the customer to a new product or service by offering a lower price। ठीक है, स्कीमिंग में हम लोग हायर प्राइस देते थे, पेनिट्रेशन में हम लोग ऑफर करते हैं लोअर प्राइस ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफरिंग। एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग वी आर ऑफरिंग द लोअर प्राइस। This lower price help a new product or service to penetrate the market and attract the customer away from the competitor। ये हमारा क्या हेल्प करता है, हमारा जो लो प्राइस में हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो दैट हेल्प टू हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस उसको पेनिट्रेट करता है, मार्केट में वो फैलता है और अट्रैक्ट करता है न्यू कस्टमर को। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज? Increase the customer interest, okay, setting the low price can marketing tool, raising the brand awareness के लिए होता है ये, quick way to gain the market share and enter a competitive industry, it enable a firm to benefit from the economy of scale and over time price can increase and firm become more profitable। long term में ये profitable होता है। so these are the advantage penetration pricing strategy के अंदर। ये एडवांटेज इसका इंक्रीज दी कस्टमर इंटरेस्ट है, लो प्राइस पे हम मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट शेयर हम लोग अर्न कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हैं, बेनिफिट हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल से मिल सकता है, एंड ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल, मतलब लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल है। So these are the advantages of penetrating pricing strategy. What is the disadvantage? Disadvantage, it might involve the selling at the loss of the first few months, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत लो अमाउंट पे हम सेल करते हैं, तो स्टार्टिंग का जो हमारा मंथ है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर नहीं होता है, मार्जिन लेट से ग्रोथ मार्जिन लेट से स्टार्ट होता है। सो दैट्स वाई सेलिंग एट द लॉस ऑफ द first few months. Then second, price gradually increase and customer may become dissatisfied and may stop purchasing the product and service। अब क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में प्राइस बहुत लो पे दिखा रहे हो, प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो बहुत ही लो प्राइस पे, फिर ग्रेजुअली जब आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो कस्टमर का जो साइकोलॉजिकली वो होता है कि सेम प्रोडक्ट और सर्विस जब वो हम लो प्राइस में लेते थे वो अब हाई प्राइस में ले रहे हैं, तो उनका वो डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कम अंडर द डिसएडवांटेज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जो भी हमारा नेटफ्लिक्स हो गया या फिर प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, वो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको मंथ 3 मंथ 1 मंथ के लिए आपको फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं कि आप फ्री में सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको लाइक है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू करो। ओके, सो दे आर यूजिंग दी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि साइकोलॉजिकली हम लोग प्राइस का अमाउंट रखते हैं जो कस्टमर को लगे कि ये कम है, जैसे आप $200 ना रख के $199 रख सकते हो, तो इस तरह से उनको साइकोलॉजिकली लगेगा कि वो बिलो इनका प्राइस 200 में है। ओके, तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट यूटिलाइज द स्पेसिफिक टेक्निक टू फॉर्म अ साइकोलॉजिकल और सबकॉन्शियस इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। इट integrate the sell tactics with price. The idea behind it is that consumer will read a slightly lower price and treat it lower than the price gradually. So these are the example of psychological pricing strategy. Discriminating pricing strategy,
The pricing discrimination is the practice of charging a different price for a good and service. ओके यहाँ पे क्या है कि इन दिस स्ट्रैटेजी द मार्केटर चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस फॉर सेम गुड एंड सर्विस, सेम गुड और सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कॉस्ट पे. सो दीज आर दी 3 टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये हमारा जो प्राइस इस पे जो हमारा कस्टमर है उसके जेंडर बेसिस पे या फिर उसके स्टेटस पे या उसके फिनेंशियल स्टेटस पे या टाइम ऑफ परचेज पे, लॉयलिटी पे हम उनसे प्राइस चार्ज करते हैं सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड दी कूपन, एज डिस्काउंट, occupational discount, retail incentive, gender based pricing, financial status, time of purchase. So according ये सारे फैक्टर हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी में वी आर मार्केटर आर चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट सेट ऑफ प्राइस फॉर सेम गुड एंड सर्विस. And what element they consider for price discrimination? Like gender based pricing, discount based, age discount based pricing, occupational discount, retail incentive, financial state, time of purchase. Okay, तो एग्जाम्पल देखते हैं. What these are the example वो सिनेमा में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या इवेंट ऑर्गेनाइजर में या वाटर पार्क, ये सब पे हमारा जो होता है किड्स का फ्री एंट्री रहता है. बहुत टाइम हमारा होता है कि जो फीमेल्स हैं उनका 50% डिस्काउंट रहेगा, या कपल में जाओ तो उनका 50% डिस्काउंट रहेगा ये सब में. तो दिस आर कम अंडर द डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ओके, cinema entertainment industry frequently offering the different price for adults, senior and children. They are also offer deal for the specific day of week. This is the because of movie theater under that specific age group are willing to spend the different amount. अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मूवी हॉल में सेम सर्विस के लिए हम लोग जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, सेम कंडीशन में हम लोग उस पर बैठ के देखेंगे मूवी, बट बच्चों के लिए अलग अमाउंट चार्ज होता है, जो हमारे सीनियर हैं उनके लिए अलग अमाउंट चार्ज होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है, डे ऑफ वीक में अलग होता है, वीकेंड में अलग होता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल कम अंडर द डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. एयरलाइन, बसेस, इसमें हमारा टिकट का जो प्राइसिंग है वो अलग होता है. तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. अनदर वन इज द डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. इसके अंदर हमें मार्केटर जो है अलग अलग टाइप का डिस्काउंट देता है, मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट, फंक्शनल डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट, ट्रेड इन अलाउंस एंड प्रमोशनल अलाउंस. ये बहुत सारे टाइप के डिस्काउंट्स देते हैं, रिबेट देते हैं प्राइसिंग में इसके अंदर, इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर. ओके, द गोल ऑफ डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज टू इंक्रीज द कस्टमर ट्रैफिक एंड क्लियर द ओल्ड इन्वेंट्री फ्रॉम योर बिजनेस एंड इंक्रीज द सेल. क्या गोल है हमारा डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का? टू इंक्रीज द कस्टमर ट्रैफिक. अगर हम सेल दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आएंगे और हमारा ट्रैफिक इंक्रीज होगा. क्लियर दी ओल्ड इन्वेंट्री, हमारा स्टॉक क्लीन होगा एंड इंक्रीज आवर सेल. कंपनी का जो सेल है वो इंक्रीज करेगा. सो दिस आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंस. Reduction to selling price of good and service applied anywhere in distribution channel between manufacturer, middleman, retail customer used to promote sell and reduce the inventory. ये जो हमारा रिडक्शन है प्राइसिंग का वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे भी हो सकता है. मैन्युफैक्चरर से आपका होलसेल में भी हो सकता है, होलसेल से रिटेल में भी हो सकता है, रिटेल से कस्टमर में भी हो सकता है. सो दिस ऑल कम अंडर दी डिस्काउंट एंड अलाउंस. सो दिस आर द एग्जाम्पल. कैश डिस्काउंट में हम कुछ कैश बैक करते हैं हम लोग. क्वालिटी डिस्काउंट में कुछ अमाउंट
एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं या फिर कुछ क्वालिटी पे डिस्काउंट देते हैं, फंक्शनल डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट में, आपको कुछ सर्विसेज डिस्काउंट में प्रोवाइड हो सकता है, सीजनल डिस्काउंट में, ऑफ सीजन पे परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. सो दिस आर दी tricks for discount and analyzing the price. Another one is the psychological pricing strategy. This is the practice of adjusting an item's sale price based on the location of buyer. बायर के लोकेशन के अकॉर्डिंग प्राइस को एडजस्ट किया जाता है अंडर दिस जोग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर. समटाइम द डिफरेंस इन सेल प्राइस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ शिप द आइटम टू द लोकेशन. इसमें शिपिंग कॉस्ट के का चार्ज इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, तो प्राइस हमारा चेंज हो जाता है. इनको सिंपल वर्ड में बोलेंगे प्राइस बेस्ड ऑन वेयर द कस्टमर आर लोकेटेड, और जोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर द फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइड ऑन द बेस ऑफ जोग्राफिक और द लोकेशन. When the organization is operating in multiple country or multiple region within a country, then they have to implement the geographical pricing as per the local taxation law and local requirement. ये कैसे इंडस्ट्री के लिए अप्लाई है? मल्टी नेशनल इंडस्ट्री के लिए है, जो कंपनी एक से मल्टीपल प्लेस पे अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही है, आउट ऑफ कंट्री भी सेल कर रही है, कंट्री के अंदर भी बहुत अलग अलग स्टेट में सेल कर रही है. तो उनके लिए क्या होता है, जोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है. वो उनका जो प्राइसिंग है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकल टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग. आपका शिपिंग चार्ज उसमें ऐड होता है, टैक्स ऐड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस चार्ज करती है. ओके. Here the seller must consider the cost of shipping goods to buyer. इसके अंदर हम ये हमारा 3 स्ट्रैटेजी है, 3 या 4 स्ट्रैटेजी है. पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग एंड पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. 3 स्ट्रैटेजी यूजुअली यूज होता है. तो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में क्या होता है या फैक्ट्री प्राइसिंग में क्या होता है, इसमें क्या करता है कि सेलर सेम या वो सेम जो भी उनका सेलिंग प्राइस है वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन में उनका सेलिंग प्राइस सेम रहता है, बट वो बायर को वो सेलेक्ट करने देते हैं, चॉइस देते हैं कि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करो और आप उसका कॉस्ट आप बियर करो. तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहता है सेलिंग प्राइस का, प्लस बायर पे को वो चूज करने देते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट. तो दैट इज द कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री प्राइसिंग. सो दिस इज द जोग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर द सेलर कोट्स द सेलिंग प्राइसिंग at the point of production and buyer select the mode of transport and pay all fringe cost. Okay. Another one is the uniform delivery pricing strategy. इसके अंदर क्या होता है कि जोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर द कंपनी चार्ज सेम प्राइस प्लस फ्रिंज टू ऑल कस्टमर एंड whatever may be their location. The company set the fringe charge and at average fringe cost and uniform delivery pricing in the opposite of फैक्ट्री प्राइसिंग. इसमें क्या होता है कि वो जितना भी उनका एक प्राइस वो सेट करते हैं, जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो सारा एक एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक प्राइस निकाल के उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऐड करके वो यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करते हैं अपने सारे कस्टमर के लिए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिलीवरिंग प्राइस. ओके. और जोन प्राइस में क्या होता है कि विद इन वन जोन हियर द मेथड इन विच द कंज्यूमर within one zone are charged one price, like client who are located closer to company dispatch point pay less and where the distance customer pay the higher as a shipping distance. वो shipping distance के according वो प्राइस चार्ज करते हैं. प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिफर टू द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय अ फर्म.
प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज होता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विस है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस जो कंपनी ऑफर करती है वो उनका पूरा एक लिस्ट है. इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन दैट कंपनी हैज इट कस्टमर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मिक्स. जो भी वो प्रोडक्ट कस्टमर को देती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो देती है या प्रोडक्ट लाइन है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या प्रोडक्ट मिक्स. तो इस प्रोडक्ट मिक्स के लिए जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें हमारा आता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैपेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग. Product line pricing, this is the strategy for setting the price for entire product line. Okay, the product line pricing is setting the price on the basis of cost difference between different product in the product line and customer evaluation of different feature and competitor price. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में प्राइस सेट करते हैं, मार्केटर प्राइस सेट करता है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उनका प्राइस सेट होता है. फॉर एग्जांपल सैमसंग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कस्टमर इवैल्यूएशन. फॉर एग्जांपल सैमसंग ऑफरिंग द डिफरेंट स्मार्टफोन विद डिफरेंट फीचर्स एट डिफरेंट प्राइस according to features, according to quality, according to cost of production, according to customer evaluation के according हम जो price setup करते हैं that is called the product line pricing. Okay. Captive product pricing के अंदर क्या होता है? Here we setting the price for product that must be used in conjunction with the main product. ठीक है, ये जैसे हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा रेजर है, इसका जो ब्लेड है, इसको मतलब अब रेजर ले रहे हो तो ब्लेड तो आपको चाहिए ही होगा. तो ये इनका जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं. उनके साथ जो यूज होने वाला प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए. ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है? हियर द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शनल और एसेसरी प्रोडक्ट अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट. हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कार है, तो हमारा कार का जो एसेसरीज है वो ऑप्शनल प्रोडक्ट है, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड या उनकी चॉइस या उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट. तो हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, मेन कार का प्राइस होगा और प्लस वो जो ऑप्शनल प्रोडक्ट चूज करते हैं, तो दैट कम अंडर द ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग. एंड अनदर वन इज द बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग. बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या है? तो प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक द मेन प्रोडक्ट प्राइस मोर कॉम्पिटिटिव. इसमें क्या करते हैं, जो मार्केटर, ठीक है, जो मार्केटर है वो क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको प्राइसिंग उसका लो करता है, जो कुछ प्रोडक्ट का प्राइसिंग लो करता है ताकि हर एक टाइप के कस्टमर आए और जो मेन प्रोडक्ट है उनका वो एक कंपटीशन वो दे सके. ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड ने क्या किया, उनका तो मेन प्रोडक्ट वो मैकडी है ही, बर्गर है, बट उन्होंने बहुत सारा लो प्राइस प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया. तो वो क्या हो गया, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया, वो मोर कॉम्पिटिटिव हो गए. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. अनदर वन इज द प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग. प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग इज द combining several product or service into the single comprehensive package for all inclusive reduced price. इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो बंडल ऑफ या कॉम्बिनेशन में हम लोग जो प्रोडक्ट को बेचते हैं बाय रिड्यूसिंग सम मनी, उसको हम लोग प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग कहते हैं. Here retailer offered several different products as a package deal and then offer the package to consumer at the lower price that it would cost to the purchase those items separately. Okay. Example of price bundling का क्या है? The bundles are everywhere in retail and e-commerce. Most common in the discount store, but luxury brand
may also run the promotional bundles on occasion. McDonald's value meal on automobiles with features such as the air conditioning sunroof is the example of product bundling pricing. Okay. So this is the example, McDonald's Happy Meal toy. Here this is the example of product bundling strategy. Thank you for watching.